Hello, dear aspirants. So, we have been doing the concept decoding, right? So, in today's concept talk, we are gonna touch one nerve of our optionals one topic, which is volumes and surface areas under the topic integral calculus. Here, so thing is when we talk about decoding the concept, basically, so there we move very slow. ठीक है. Basically, we try to connect the dots for different things in a very effective manner to address the demand of UPSC exam. We don't deviate from that. Fair? तो बेसिकली हमारे पास एक टॉपिक है वॉल्यूम्स के बारे में. वी हैव ऑलरेडी हैड 2 concept talks, so you can go through those. Surface areas is still missing. So surface areas of solids of revolution. ठीक है. तो जब हम सरफेस एरिया की बात करते हैं तो हमारे पास एक तो ये चीज है सरफेस ऑफ एरियाज ऑफ सॉलिड्स ऑफ रिवोल्यूशन. एक और है हमारे पास कि मेरे को अगर मेरा जो कर्व जो सरफेस है वो दैट इज गिवन इज ऑफ दिस फॉर्म, देन द सरफेस एरिया इज फॉर लिमिट्स फॉर एक्स एंड वाई अंडर रूट 1 + डेवर z ओवर डेवर x का होल स्क्वायर प्लस डेवर z ओवर डेवर y into dx dy. Right? So thing is dear, on both of the forms we may have problems in our exam. So we would like to decode these concepts beautifully. First, solids of revolution में अगर हम बात करें, we may have different forms like Cartesian, like polar, like parametric. Fair? So this is one of the concept. If you talk about this, तो ये फॉर्मूला का डेरिवेशन भी अगर आप चाहें तो बहुत बड़ा 30 मार्क खान मतलब ऐसे करके नहीं है. सिंपली DRS लिखे जाते हैं. दोज आर -1 डेवर z ओवर डेवर x डेवर z ओवर डेवर y, और उसके वहां से उनको यूज करके 3D के अंदर भी हम इसकी बात करते हैं डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस की. सो नॉट अ बिग डील. फॉर द टाइम बीइंग वी विल बी कंसर्न्ड अबाउट दिस टॉपिक in this particular concept talk. If you are interested in more कि DRS DCs ये कैसे निकलते हैं, you must not forget to attend the concept talk during the 3D topics. Okay. Here solids of revolution and all. इसके बाद में हमारे पास दो बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है. आई कैन से वेरी इंपॉर्टेंट as far as our both of the exams are concerned, CSE and forest services. तो इन theorems के बारे में भी we will be talking in today's concept talk. So it may be possible the talk goes 5 minutes less or higher. Please cooperate so that in one concept talk we decode fully at least 2-3 types of previous year questions. When I say PYQs, it means categories of questions we can deal, right? Let's move on. चलिए. तो जब हम सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन की बात करते हैं, व्हाट डज दैट मीन एक्चुअली? तो सबसे पहले तो हम ज्योमेट्रिकली उसको समझने की कोशिश करें. दैट इज द टॉप प्रायोरिटी हियर. फेयर? चलो, लेट्स मूव ऑन. देखिएगा ध्यान से. द वेरी फर्स्ट पॉइंट विच वी आर गोना डिस्कस, दैट इज surface areas of solid of revolution. ठीक है. सरफेस एरियाज ऑफ सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन की जब हम बात करते हैं तो ज्योमेट्रिकली व्हाट डज दिस मीन? देखिए, वी ऑन द बोर्ड प्लीज एवरीवन. Suppose that this is x-axis, this is y-axis, and let's say this is the curve
y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। क्लियर? ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए ये, क्योंकि बेसिक्स ये न्यू जनरेट करेगा हमारी। अब हम क्या कर रहे हैं, इस कर्व को रिवॉल्व कर रहे हैं अबाउट द एक्स एक्सिस। व्हाट वी आर डूइंग, रिवॉल्विंग y equals to f of x about the x axis between x equals to a and x equals to b। क्लियर? कोई दिक्कत यहां तक नहीं? तो व्हाट आई डू हियर इज, ध्यान से देखिएगा, टू गेट द टोटल सरफेस एरिया, to get the total surface area of this solid of revolution, I consider some infinitesimally small element here. Okay, what I do here, I consider, ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, दिखाने के लिए थोड़ा दूर लिया है, बाकी आप समझदार हैं। Let's say this is the point P, this is the point Q, P is the point x comma y, Q is the point x plus delta x comma y plus delta y, and let's say this arc length, ध्यान से देखिएगा, डेल्टा एस हमने क्या लिया है, आर्क लेंथ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहां पर। आर्क लेंथ इज डेल्टा एस। तो वेन एवर वी विल बी टॉकिंग अबाउट आर्क लेंथ, तो आर्क लेंथ के बारे में जो जो फॉर्मूले हैं वो हमें यहां जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो वन फॉर्मूला इज दिस। इफ यू आर मोर इंटरेस्टेड देन डोंट फॉरगेट टू अटेंड द कॉन्सेप्ट टॉक। आई गेस अभी नहीं है, अभी विल कम, बट डिफरेंशियल कैलकुलस के अंदर में वी हैव दिस पर्टिकुलर टॉपिक टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स, इन दैट वी बेसिकली डील दिस आर्क लेंथ ds कैसे कैलकुलेट करते हैं एंड ऑल। फॉर द टाइम बीइंग वी आर जस्ट टेकिंग रेफरेंस फ्रॉम देयर इटसेल्फ। Where? So this is in this format, कार्टिशियन में, पैरामीट्रिक फॉर्मेट में भी लिखा जाता है। सो ds अपॉन dt वी कैन राइट इट एज dx अपॉन dt का होल स्क्वायर प्लस dy ओवर dt का होल स्क्वायर। पोलर फॉर्म के अंदर भी लिखा जाता है ds अपॉन d थीटा इक्वल्स अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस डी आर ओवर डी थीटा का होल स्क्वायर, ds अपॉन डी आर अंडर रूट 1 प्लस आर डी थीटा ओवर डी आर का होल स्क्वायर। So these are few things which we will be borrowing for our understanding here in the concept talk of surface areas. Clear? अब हम आते हैं अपने मुख्य मुद्दे पर, राइट जिसके लिए हम इस कॉन्सेप्ट टॉक में जी जान लगाए हुए हैं, है ना। चलिए, अगर हम बात करें कि ये जो पार्ट है, ध्यान से देखिएगा, इसकी आर्क लेंथ कितनी ले रखी है, डेल्टा एस। अब अगर मैं, बी ऑन द बोर्ड प्लीज, दिस वी हैव डन इन दैट एज वेल, वॉल्यूम्स वाले में भी है ना, बी ऑन द बोर्ड प्लीज। Suppose that this is the point A, this is the point B. So if I talk about, ध्यान से देखिएगा, this is P, this is Q, this is A, this is B. So obviously this is x plus delta x. If you talk about this height, this is y. If you talk about this height, this is y plus delta y. Right. अभी मैं क्या करता हूं, डिफरेंट, अब ये वाला जो पार्ट है देखना ध्यान से, इसको रिवॉल्व किया जा रहा है, तो जो बाई जो हाइट है दैट विल वर्क एज रेडियस ऑफ दिस सर्किल और नॉट, क्योंकि मैंने इसको स्मॉल स्ट्रिप लिया है, एक लाइन की तरह इसको ट्रीट कीजिए, पूरे को मत सोचिए कि सर कि पूरे में जरूरी थोड़ी ना सर्किल ही मिलेगा। मैं कौन कह रहा हूं जरूरी सर्किल मिलेगा, मैं कह रहा हूं उसमें से थोड़ा सा एक इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल स्ट्रिप उठाइए, उस स्ट्रिप को रिवॉल्व कीजिए एक्स एक्सिस के अबाउट,
तो ये जो सर्किल बन रहा है, इस सर्किल की रेडियस यही हाइट तो बनेगी। तो फिर जो उसकी परिधि होगी दैट इज 2 पाई बाई, अरे बोलो हाँ या ना, 2 पाई बाई। दूसरी बात, अब ये जो आर्क लेंथ है दैट इज डेल्टा एस, तो सरफेस एरिया विल बिकम 2 पाई बाई डेल्टा एस। सपोज दैट माई रिक्वायर्ड सरफेस एरिया इज कैपिटल एस इट सेल्फ, ओके। तो लेट से दैट इज डी कैपिटल एस, दिस विल बी लाइंग बिटवीन, अगर मैं बाई प्लस डेल्टा बाई हाइट के साथ में इसको वर्क कर लूं, तो दिस विल वर्क एज, अभी देख लीजिए, 2 पाई बाई। नाउ एज द पॉइंट Q टेंड्स टू P, दैट मीन्स डेल्टा बाई टेंड्स टू 0, तो क्या बन जाएगा, 2 पाई बाई डेल्टा एस डी एस, राइट। दिस इंप्लाइज दोनों तरफ से सेम ही है, तो डी एस इक्वल्स 2 पाई बाई डेल्टा एस, राइट और नॉट। ध्यान से देखते रहना। अब देखिए बात को कि हम इसको कहां पे ले जाना चाह रहे हैं। जस्ट वेट अ मिनट प्लीज, एक्चुअली टुडे आई हैड बैक टू बैक लेक्चर्स, तो अभी इट्स वेरी टफ टू कंटिन्यू द थिंग्स, ठीक है, बट समहाउ आई एम ट्राइंग टू मैनेज द थिंग्स, ओके। तो प्लीज कोऑपरेट, है ना, थोड़ा सा। अभी देखिएगा, अगर मुझे टोटल सरफेस एरिया चाहिए होगा तो आई कैन इंटीग्रेट दिस, चेक इट आउट प्लीज, आराम से एकदम बिना किसी तनाव के। टोटल सरफेस एरिया कैन बी रिटन एज समेशन ऑफ इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल स्ट्रिप्स, सारे जितने स्ट्रिप होंगे, एंड दैट इज टर्म्ड एज इंटेग्रेशन। इंटेग्रेशन कहां से कहां तक चाहिए, x इक्वल्स टू a से b तक, खत्म कहानी। तो सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन कितना मिल गया, इंटीग्रेशन x गोइंग फ्रॉम a टू b 2 पाई बाई ds, राइट और नॉट। अब अगर मैं इसको रिवॉल्व, इस कर्व को मान लो दूसरा फॉर्मेट अपने पास होता, जहां पर, बी ऑन द बोर्ड प्लीज एवरीवन, अभी मैं क्या कर रहा हूं, मैंने ये कर्व लिया x इक्वल्स टू सम फंक्शन ऑफ बाई, और इसको रिवॉल्व कर दिया बाई एक्सिस के अराउंड। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो अब यहां पे जो सरफेस एरिया मिलेगा उसमें क्या, x की जगह बाई वाला रोल स्टार्ट हो जाएगा, और लेट्स से दिस इज बाई इक्वल्स सी टू डी, तो बाई इक्वल्स सी टू डी 2 पाई x ds, राइट और नॉट। अब ds के साथ में अपन कैसे काम कर सकते हैं उसको देखिए जरा, a टू b 2 पाई बाई ds की जगह वी विल राइट ds अपॉन dx इंटू dx टाइप। ds अपॉन dx कहां से आएगा, हियर वी कैन राइट y इक्वल्स c टू d 2 पाई बाई ds अपॉन dy टाइप। डिड यू गेट द पॉइंट एवरीवन, प्लीज से यस और नो। So either you revolve about x-axis or you revolve about the y-axis. The formulas for surface area is at your hand. कोई दिक्कत यहां तक। अब सपोज दैट पैरामीट्रिक फॉर्म में चाहिए होता, तो पैरामीट्रिक फॉर्म में जाने के लिए व्हाट यू विल डू, चेक इट आउट प्लीज, a टू b 2 पाई बाई ds ओवर dt इंटू dt। अब ds ओवर dt कहां से निकल के आ जाएगा, खत्म कहानी। भाई कर्व आपको गिवन होगा ना, x इक्वल्स टू सम फंक्शन ऑफ t, y इक्वल्स टू सम फंक्शन ऑफ t, और उसी के लिए तो सरफेस एरिया पूछा होगा ना, बोलो। तो सॉलिड्स ऑफ रिवोल्यूशन का सरफेस एरिया इज ओके और नॉट, किसी को कोई डाउट, आई होप नो। आगे बढ़ते हैं।
आराम से टिके रहिए बोर्ड पर, ठीक है। अब मान लो मुझे पोलार फॉर्म में चाहिए हो, तो पोलार फॉर्म में भी किसने मना कर दिया भाई? पोलार फॉर्म के लिए हम क्या करेंगे? डी एस ए टू बी डी एस अपॉन 2 पाई बाई डी एस ओवर डी आर इंटू डी आर। अब डी एस ओवर डी आर कहां से आ जाएगा? ये रहा, तो चेक कर लो खुद ही। आर यू गेटिंग द पॉइंट एवरीवन? कोई डाउट किसी को? तो थिंग इज व्हेन यू टॉक अबाउट द सरफेस एरियाज ऑफ सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन, देन थिंग्स वर्क लाइक दिस। अभी व्हाट आई एम गोना डू फॉर यू, I will take few examples, just 3 examples out of 3 categories, just to make you feel कि कहाँ पे आपको क्या जरूरत होगी। ये पढ़ के conceptual clarity तो आ गया, लेकिन क्या is it enough? Maths is nothing without doing, right? You agree or not? Say please yes or no. चलिए, तो let's move on. Sorry. क्वेश्चंस उठाते हैं, और थोड़ा सा आज का रिदम जो है वो स्लो है, प्लीज ट्राई टू कोऑपरेट, क्योंकि पीछे जितने भी कॉन्सेप्ट टॉक है इसमें इतना ज़्यादा रिदम स्लो नहीं रहा होगा, बट मेरी आंखें आपको बता रही होंगी कि कितने लेक्चर सुबह से लग चुके हैं। एनीवेज, मैं चाहता हूं कोई गैप ना हो, इसलिए कभी भी हम मतलब कैंसिल करने के मूड में नहीं रहते हैं चीज़ों को। तो लेट्स हैव सम व्हाट, अच्छा, सरफेस एरिया का क्वेश्चंस, राइट। फॉर एग्जाम्पल जो हमें पता है उसी के बारे में हम बात कर लेंगे, ताकि हमें एक फीलिंग भी आएगी कि अच्छा ये थी बात, है ना। चलो, राइट द क्वेश्चन प्लीज। फाइंड द कर्व्ड सरफेस, फाइंड द कर्व्ड सरफेस ऑफ ए हेमीस्फीयर ऑफ रेडियस ए। आराम से देखिए इसको, पहले तो सोचिए, जैसे कि आपको पता ही है 4 पाई r² 2 पाई r², स्फीयर एंड हेमीस्फीयर वो आप जानते ही है, लेकिन ऐसा क्यों है? रेडियस ए है तो a² टाइप, व्हाई दिस इज सो? तो नाउ वी आर इंटरेस्टेड इन गेटिंग दैट सेंस आउट ऑफ दिस क्वेश्चन, क्लियर? तो अभी अपन ने क्या किया है, किससे रिवॉल्व करेंगे? स्फीयर इमेजिन कीजिए सारे लोग। तो आप लिखेंगे यहां पर, प्रॉपरली लिखेंगे इसको कि हेमीस्फीयर, कैसे लिखेंगे? हेमीस्फीयर is found by revolving a circle about a line। अब वो लाइन आप एक्स एक्सिस ले सकते हैं, बाई एक्सिस, जिसके एक्सिस भी आपको इंटरेस्ट होगा। तो द सेकेंड स्टेप इज व्हाट? लेट द इक्वेशन ऑफ सर्किल इज x² प्लस y² इक्वल्स टू a², ठीक है। अभी अभी हमने सरफेस एरिया क्या पढ़ा है? सरफेस एरिया विल बी 2 पाई बाई, अब x जो मेरा है वो कहां से कहा जा रहा है? 0 to a, आप सर्किल करके देख सकते हैं, 2 पाई बाई ds। अब अगर मैं ये फॉर्म ले रहा हूं तो मुझे ये लेना पड़ेगा, दैट मीन्स 0 to a, 2 पाई बाहर ले लिया, बाई कहां से आएगा? अंडर रूट a² माइनस x²। ds अपॉन dx मैं आपको बता ही चुका था, 1 प्लस dy ओवर dx का होल स्क्वायर, बाहर चल रहा है dx। कोई दिक्कत किसी को भी? एनीवन? नो, राइट। लेट्स कीप ऑन मूविंग। अब जब आप सरफेस एरियाज कैलकुलेट कर रहे होंगे, तो अब आप देख लीजिए आपको किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी। आपको dy अपॉन dx चाहिए, आपको x की लिमिट्स चाहिए थी, वो आपने लिमिट्स यहां से ले ली। अब आप देख लीजिए इसको dy अपॉन dx कैसे, सिंस बाई इज अंडर रूट a² माइनस x²,
तो dy/dx will be 1/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, दैट इज माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. So just put the value here. What we are gonna get now? 2 pi, I'm sorry, 0 to a under root a square minus x square into 1 plus dy over dx का whole square. तो x square upon a square minus x square into dx. a square minus x square से यहां से कट गया. तनाव नहीं लेना है. ये है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. अंदर ऊपर में बचेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से ये गया अंडर रूट ए स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. तो दैट इज आई एम वेरी सॉरी. तो 2 पाई अंडर रूट वाला ए बाहर आ गया, 0 से ए dx. तो 2 पाई ए इंटू ए, 2 पाई ए स्क्वायर. आराम से देख लीजिए बिना किसी तनाव के. कोई दिक्कत किसी को भी? एनी ऑफ यू? नहीं? एक बहुत बेहतरीन सा सवाल आपके लिए उठाते हैं. लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू एंजॉय दैट, क्योंकि वहां पर कर्व ट्रेसिंग भी बहुत मस्त रोल प्ले करेगा और इसी के बहाने अपना पैरामीट्रिक फॉर्म भी हो जाएगा. क्वेश्चन है, फाइंड द सरफेस ऑफ द सॉलिड, find the surface of the solid generated by, find the surface of the solid generated by revolution of asteroid x power 2 by 3 y power 2 by 3 equals x power a power 2 by 3. और खुद ही दे दिया यार, अब तो क्या हट नहीं देंगे. अबाउट एक्स एक्सिस. चलो, वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन. पॉज द वीडियो, ट्राई द क्वेश्चन प्लीज. सभी लोग क्वेश्चन को ट्राई कीजिए प्लीज. किया? देखिए ध्यान से मेरे भाई, अगर आपको इंटीग्रल कैलकुलस के क्वेश्चंस एंजॉय करने हैं तो आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू, नेवर ever do it without doing the curve tracing. There is a topic curve tracing, ठीक है, डिफरेंशियल कैलकुलस के अंदर. ओके डियर फेलोज, तो व्हाट आई सजेस्ट यू, यहां पर पता अब पूछेंगे कर्व ट्रेसिंग सर क्यों सजेस्ट कर रहे हैं, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड योर सजेशन, यू मे आस्क, राइट? तो माय डियर फेलोज, व्हेन यू टॉक अबाउट कर्व ट्रेसिंग, आपको लिमिट्स के बारे में आइडिया मिलता है वहां से. टू गेट आइडिया अबाउट लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन. फिर अब आप कहेंगे कि सर पैरामीट्रिक का कर्व ट्रेसिंग अलग होता है क्या, कैसे कर्व ट्रेसिंग करते हैं? तो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दैट, then do let us know. We will definitely plan some concept decoding over curve tracing as well. Fair? But for the time being I'm just like saying कि अगर आप इसको ट्रेस करने की कोशिश करेंगे एस्ट्रॉइड को, तो बेसिकली एस्ट्रॉइड ये दिखता है, ठीक है? This is the point a comma 0 here. Fair? So this is looking like the asteroid part for us. Now in what we are interested here? We are interested in calculating the surface of solid of revolution about x-axis, right? So let's do that. So calculation part may be there. So what I am doing is parametric form. Please observe
पैरामीट्रिक फॉर्म इज व्हाट हियर, that is x equals a cos cube t by equals a sin cube t, right? Parametric form you can understand out of these equations. Fair. So if this is, हमें पता ही है कि हमें तो dx upon dt की जरूरत पड़ेगी ही, तो this is 3a cos square t minus sin t, dy over dt क्या हो जाएगा बच्चे, 3a sin square t that is cos t. So ds upon dt will be under root dx over dt का square plus dy over dt का square. By putting these values here, what I am getting, 9a square cos power 4t sin square t, right? Plus यहां से क्या मिलेगा अपने को, 9a square sin power 4t cos square t, right or not? So by simplifying this expression, what we are gonna get is, अगर हम इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें, नहीं तो थोड़ा रटा हुआ लगेगा अपने को, राइट? तो इफ आई टेक साइन स्क्वायर टी कॉस स्क्वायर टी कॉमन, बहुत बढ़िया, 9a स्क्वायर साइन स्क्वायर टी कॉस स्क्वायर टी वी हैव टेकन कॉमन, तो हियर इट विल बी कॉस स्क्वायर टी प्लस कभी भी मतलब हिम्मत नहीं हारना है, दैट इज द पॉइंट, 3a साइन टी कॉस टी और ये हो गया 1। कितना बेहतरीन सा एक्सप्रेशन निकल कर आया। और अगर हिम्मत हार गए होते कि नहीं यार क्या बकवास टाइप का कैलकुलेशन पूछता है करके, तो अपना काम वहां से खत्म था, राइट? अब अपने को चाहिए सरफेस एरिया, राइट? सो इफ यू टॉक अबाउट सरफेस एरिया, तो बेसिकली अब फिर यहां पे वही बात आ जाएगी कर्व ट्रेसिंग वाली, ठीक है? यार मन नहीं मानता, कितना भी थके रहो फिर भी ओके डियर फेलोज, चलो बोल ही देते हैं आपको, थोड़ा सा सांस लेते हैं गहरी, बाबा रामदेव जी को याद करते हैं, है ना? चलो आज पैरामीट्रिक फॉर्म में अगर आप कर्व ट्रेसिंग करना चाहते हैं, ठीक है, पैरामीट्रिक की कर्व ट्रेसिंग, तो जैसे यहां पर अगर आप ऑब्जर्व करें तो यहां पैरामीटर क्या है, पैरामीटर इज टी, फेयर? So while doing the curve tracing of parametric curves, what we do is we take t के different values. Okay dears, let's say t का वैल्यू 0 लिया और हम ऑब्जर्व करते हैं x के वैल्यूज एंड y के वैल्यूज। किसके लिए? t के लिए मान लो 0 ले लिया, t का वैल्यू π/4 ले लिया, π/2 ले लिया एंड सो ऑन, मान लो पाई तक हमने ले लिया, ठीक है? अब फॉर t इक्वल्स टू 0 क्या वैल्यू मिल जाएगा, x इक्वल्स a cos 0, दैट इज x इज a into 1, so a, y will be 0। सिमिलरली π/4 के लिए a 1/√2 का क्यूब, तो 1/2√2, हियर ऑल्सो 1/2√2। इफ यू टेक π/2, x का वैल्यू इट विल 0, दैट विल बिकम a एंड सो ऑन। पैरामीट्रिक कर्व ट्रेसिंग बहुत आसान होती है, बहुत आसान। कार्टेशियन में तो काफी कुछ अपने को लाइक माथापच्ची करनी पड़ती है, पैरामीट्रिक में तो बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत आराम से मूव कर सकते हैं। तो अब आप देख लीजिए, सरफेस एरिया से आप मुझे कर्व ट्रेसिंग पर ले आए। अब आप क्या कीजिए, पॉइंट्स देख लीजिए, a,0 से कर्व पास हो रहा है, 0,a से कर्व पास हो रहा है अरे यार अब तो आप समझ गए बात को, क्लियर है? कर्व सिमेट्रिकल अबाउट बोथ एक्सेस है, तो अगर मैं इस वाले कर्व को एक्स एक्सेस के अबाउट रिवॉल्व करूंगा, आई विल गेट द सरफेस एरिया। तो अगर मैं t का वैल्यू 0 से π/2 मींस अगर इस वाले का सरफेस एरिया निकाल लूं, उसका 2 टाइम्स कर दूं आराम से, क्योंकि यहां आप लोग गलतियां करते हैं, यू डू ब्लंडर्स। वापस से सुनिए, अपने को चाहिए रिवॉल्यूशन, ठीक है, इसका सरफेस।
मैंने क्या किया, केवल इस पार्ट का सरफेस एरिया निकाल लिया, और इस पार्ट के लिए हम कहां से कहां जा रहे हैं, x is going from a to 0. When x is going from a to 0, then what about t? t is going from 0 से pi by 2. तो अब आपकी बात बन गई यहां पर। तो अगर आप सरफेस एरिया यहां लिखना चाहेंगे तो यू विल हैव t गोइंग फ्रॉम 0 से पाई बाई 2। 2 टाइम्स क्यों कर दिया, या तो आप t 0 से पाई ले लीजिए तो 2 टाइम्स नहीं करना पड़ेगा, अगर 0 से पाई बाई 2 लिया है केवल ये वाला पार्ट तो उसका 2 टाइम्स कर दीजिए, क्योंकि सेम आपको बाय द सिमेट्री यहां पर भी सरफेस एरिया मिलेगा। तो दिस बिकम्स 2 पाई बाई डी एस। अब डी एस को क्या लिख देंगे, डी एस ओवर डी टी इंटू डी टी। 2 टी गोइंग फ्रॉम 0 से पाई बाई 2, 2 पाई बाई की जगह क्या आ जाएगा, ए साइन क्यूब टी। डी एस अपॉन डी टी की जगह क्या आ जाएगा, 3a साइन टी कॉस टी डी टी। अब आप कहेंगे कि सर ये तो बहुत मुश्किल है इंटीग्रेशन, ये कैसे होगा, यू मे क्राई राइट। बीटा गामा फंक्शन किस दिन मौज करेगा हमारी, अरे बोलो भाई, बीटा गामा फंक्शन कब मौज कराएगा। तो बीटा गामा में अपने ने इंटीग्रेशन पढ़ रखा है, थीटा गोइंग फ्रॉम 0 से पाई बाई 2 साइन एम थीटा कॉस एन थीटा डी थीटा, दैट इज गामा एम प्लस 1 बाई 2 गामा एन प्लस 1 बाई 2 अपॉन 2 गामा एम प्लस एन प्लस 2 बाई 2। राइट और नॉट, कोई दिक्कत किसी को भी, एनीवन, विश्वास दिलाइए। So by using this thing, this integration can be tackled very easily without any tussle. Okay? कोई दिक्कत, पैरामीट्रिक फॉर्म का कर दिया। सिमिलरली पोलार फॉर्म की कर्व ट्रेसिंग में भी अगर जाना चाहे तो वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, उसको भी किया जा सकता है बिना कोई तनाव लिए हुए। क्या, बिना कोई तनाव लिए हुए, ठीक है। बाकी जो पेपस थ्योरम है और दिस गोल्डन थ्योरम वो दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा मन तो नहीं मान रहा है अब छोड़े बिना, लेकिन कोई बात नहीं, एक बार हम वापस से पोलार फॉर्म का क्वेश्चन और पेपस और गेल्डन को अगले कॉन्सेप्ट टॉक में करेंगे ताकि बेटर क्लैरिटी आए और उसके क्वेश्चंस भी हम टैकल कर पाए उस कॉन्सेप्ट टॉक के अंदर। विल इट बी फाइन, से यस और नो, बोलिए तो मैं अभी कर देता हूं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है उसमें करके, से यस और नो, कर दे क्या। करवा लो यार, अब तुम छोड़ो, तुम मानोगे नहीं। कोई बात नहीं, देखो क्या होता है ना, जब भी मैं थका होता हूँ तो फिर मैं फुटकर में सोचता हूँ कि चलो 5-10 मिनट का और 5 मिनट का और। ये मेरी लाइफ का ट्राइड एंड टेस्टेड टेक्निक है, और मतलब मेरा कोई इस पे कॉपीराइट नहीं है, लेकिन हाँ ये मेरी फीलिंग्स हैं। एज ए स्टूडेंट अगर आप इनको अडॉप्ट करना चाहें तो आप कर सकते हैं, चॉइस इज योर्स, ठीक है। तो पेपस एंड गोल्डन का आई विल बी टेकिंग द नोट्स का सहायता वहां पर, सो दैट कुछ भी गलत ना हो करके, क्योंकि दिमाग में तो चीजें सारी है, फिर भी जस्ट बिहेव लाइक अ स्टूडेंट। यार क्या करना है, गॉड तो हूं नहीं मैं, सारी चीजें हमारे दिमाग में रखी हैं, फेयर। लेकिन हाँ आपको समझा दूं सारी चीज, ये बहुत बेटर मैं एश्योर करने की कोशिश करता हूं। और कॉन्सेप्ट टॉक इज ऑल अबाउट नॉट लीविंग द थिंग्स इन बिटवीन, ठीक है। चलिए लेट्स ट्राई फॉर दैट। तो पेपस एंड गोल्डन पर आ जाते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल। तो फर्स्ट वी राइट द पेपस थ्योरम, ठीक है। तो ऑब्वियसली इफ इट इज अ थ्योरम सो इट विल हैव एन स्टेटमेंट। स्टेटमेंट, जब भी आप किसी भी थ्योरम का स्टेटमेंट पढ़ें मेरे प्यारे बच्चों, माई लाइक स्पेशल सजेशन फॉर यू, नेवर बी इन हरी, ट्राई टू डिकोड एवरी की वर्ड इन साइड द स्टेटमेंट। इतना तो इतने दिन साथ रहते रहते आप सीख ही चुके हैं, है ना।
चलिए, राइट द स्टेटमेंट प्लीज. तो ऑब्वियसली दिस पेपर्स थ्योरम टॉक्स अबाउट वॉल्यूम ऑफ रिवॉल्यूशन. तो हाईलाइट द वर्ड कि हम ये थ्योरम किसके बारे में, क्योंकि ये दोनों ही चीजें पेपर्स और गोल्डन साथ में चलता है और वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया साथ में चलता है, इसलिए मैं इसको बहुत एक्सक्लूसिव नहीं रखना चाह रहा था. ठीक, चलो. इफ अ क्लोज्ड प्लेन कर्व, एक एक चीज को डिकोड करेंगे. इफ ए क्लोज्ड प्लेन कर्व, ठीक है. इफ अ क्लोज्ड प्लेन कर्व revolves about a straight line, revolves about a straight line, revolve हो रहा है, ठीक है, इसके एक लाइन के अबाउट में. बहुत बढ़िया, ठीक है. लाइन इन इट्स प्लेन, अपने ही प्लेन में है, ठीक बात है, ठीक है. विच डज नॉट इंटरसेक्ट इट, अच्छा उसको I'm sorry, which does not intersect it. ये बहुत क्रूशियल पॉइंट होता है, क्योंकि जो हमने पीछे डिस्कशन किया है सॉलिड्स ऑफ रिवॉल्यूशन में, वहां पर हम उसको इंक्लूड करके चल रहे थे एक्स एक्सेस वाले पार्ट को, राइट. So that is the crucial point. You can mark star over here. Which does not intersect. The volume of the ring thus obtained. The volume of the ring. Sorry. Thus obtained is equal to the area of the region enclosed by the curve, ठीक है, enclosed by the curve multiplied by the length of the path described by the centroid of region, described by the centroid of region. सेंट्रॉइड के बारे में तो हम लोग बात कर ही लेंगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि नेक्स्ट कॉन्सेप्ट टॉक इज गोना बी ओवर सेंट्रॉइड इटसेल्फ, एंड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट बिकॉज ओवर विच वी कैन हैव क्वेश्चंस डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली. इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अवर स्टैटिक्स पार्ट, क्योंकि उसका तो स्टैटिक्स सेंट्रॉइड के बिना काम चलेगा ही नहीं. नन ऑफ द चैप्टर्स इन द स्टैटिक्स बात ही नहीं हो पाती है उसकी, ठीक है. चलिए, फिलहाल हम इस पर अडिग रहते हैं, अपने काम को अंजाम तक पहुंचाते हैं. चलिए, तो व्हाट इट इज टॉकिंग अबाउट बेसिकली, तो दिस इज द प्लेन कर्व. बहुत बढ़िया. लेट्स से दिस इज द पॉइंट, इसको मैं दे देता हूं. लेट्स से ऑब्वियसली इसको हम x इक्वल्स टू ए बोल देते हैं, इसको x इक्वल्स टू, ये तो हम बार बार करते आ रहे हैं, अब तो आपको आदत पड़ गई होगी. So let's say this is P2, let's say this is P1, this is A, this is B, L, M, N, this is x-axis, this is y-axis. So what we have here, please notice, volume of the ring generated, देखिएगा, volume of the ring generated, ठीक है, by the revolution of A, P2, P1, B, P1, A, right, about the axis of x, about the axis of x. तो what it will be, अगर मैं ऊपर वाले से वॉल्यूम निकालूं और नीचे वाले से, ऊपर वाले में से नीचे वाले का घटा दूं, तो इसके लिए मुझे मिल जाएगा, प्लीज से यस और नो, बच्चा लोग की तरह, ठीक है. तो दिस विल बी वॉल्यूम जनरेटेड बाय एरिया, नीचे वाला पहले, ऊपर वाला सॉरी, जनरेटेड बाय द एरिया ALN B P2A माइनस
वॉल्यूम जनरेटेड बाय द एरिया, वॉल्यूम जनरेटेड बाय द एरिया, नीचे वाला अपना कौन सा एरिया है वहां पर, दैट इज ALNB P1A, राइट। तो दिस विल बी, वॉल्यूम्स के बारे में तो अपन इतनी कलाकारी कर चुके हैं कि कुछ पूछिए नहीं। तो पाई बाई टू स्क्वायर dx माइनस पाई A to B पाई बाई 1 स्क्वायर dx, सो दिस कम्स आउट टू बी A to B पाई बाई 2 स्क्वायर माइनस बाई 1 स्क्वायर dx, राइट। अब जब तक आपने सेंट्रॉइड नहीं पढ़ा होगा टॉपिक, देखिए प्यारे बच्चों, क्योंकि टॉपिक आप यहां पर सेंट्रॉइड से रूबरू हो रहे हैं, तो व्हाट आई सजेस्ट यू, देखिए मैं यहां पे आके आपको, चूंकि स्टेटमेंट तो है ही, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स हम डिमिस्टिफाई कर रहे थे, तो उनके अंदर अपने को एक चीज मिल चुकी है कि पेपर्स थ्योरम ये है, ठीक, उसमें सेंट्रॉइड की बात होती है। अब आया सेंट्रॉइड ऑफ अ बॉडी फॉर द सरफेस एरिया, दिस इज like this will be dealt in the concept talk of centroid, ठीक है। so here I am just writing the result for just on the result sake. If you are interested, then don't miss the next concept talk, that is all about centroids. It will very interesting, fantabulous, very important, ठीक है। चलो, so let's use that here directly. so centroid के लिए अगर हम ऑर्डिनेट की बात कर लें, तो बाई बार इट विल बी गिवन बाई A to B 1 by 2 by 1 plus by 2 into by 2 minus by 1 dx divided by A, and that will be 1 by 2 pi by 2 square minus by 1 square dx divided by A. आई गेस यही हमें प्रूफ करना था, नहीं कुछ और प्रूफ करना है क्या, वो चाहिए, hence the multiply. Okay, fair dear fellows. So finally we can have here, अरे भाई just give me 1 minute only. Finally अपने को चाहिए था required volume that will be 2 pi A by bar, क्योंकि वो हाइट को डिनोट करेगा, तो 2 pi A by bar A into 2 pi by bar एरिया ऑफ द क्लोज्ड कर्व 2 पाई इंटू सेंट्रॉइड वाला ऑर्डिनेट, फेयर। बाकी उसका फॉर्मूला चाहिए तो वहां से यूज कर सकते हैं। डियर फेलोज, व्हाट आई सजेस्ट यू, हियर आई हैव जस्ट ट्राइड टू इंट्रोड्यूस द पेपर्स थ्योरम। इफ यू कम अक्रॉस एनी ऑफ द डाउट, डू लेट मी नो, आई विल श्योरली कम अप विद द नेक्स्ट टॉक, क्योंकि मतलब आई ट्राइड माई बेस्ट टू कीप थिंग्स ऑन। तो यहाँ पर सेंट्रॉइड के बारे में आपको दिक्कत आ सकती है, बाकी जो हमें प्रूफ करना था वो ये था। एरिया के बारे में अगर आपको दिक्कत आए, एरिया अंडर कर्व, तो इसके लिए ऑलरेडी हमने एक कॉन्सेप्ट टॉक लिया हुआ है, ठीक है। सो डोंट फॉरगेट टू अटेंड दैट, थिंग्स विल बी क्लियर, एंड फॉर सेंट्रॉइड वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट टॉक फॉर श्योर, फेयर। सो टुडे आई ट्राइड, क्या क्या ट्राई किया है सॉरी, today we tried to decode surface areas for solids of revolution. हालांकि हमारे एजेंडा में वो वाला भी पार्ट था, लेकिन हम उस पर बात कर नहीं पाए। एनीवेज कभी फिर से बात कर ली जाएगी, राइट। जब आपको सरफेस z इक्वल्स टू फाई ऑफ x बाई गिवन है, तो इन दैट केस वी डू द सरफेस एरिया लाइक दिस। एनीवेज इट्स अ नाइस discussion with you. So we will meet in the next concept. Till then, I hope you people are enjoying the concept talk series. For today's special, I would like to say, don't frame your opinion about me or something कि टीचर यार बहुत एनर्जेटिक नहीं था करके। स्टिल कॉन्सेप्ट टॉक्स में हर जगह यही कोशिश की जा रही है कि चीज़ों को बेटर वे में समराइज किया जा सके। So I hope you all are enjoying the things. Keep learning, keep smiling. Good luck.